Good evening, sir. So I'll just quickly go ahead, sir. This is the presentation on the River Basin Master Plan of Dhansiri Sub-Basin. It was prepared in 1991 and published in 1996 and approved in 2004, sir. So just a general outline of what we have in a master plan, just description of the basin and then identification of the problems and the priorities for development, and then identify the opportunities which are there in the basin, and then adopt a comprehensive approach for development of the our opportunities in the basin. Next. And finally, the recommendation. Next. Finally, the recommendations which are generally outlined in the River Basin Master Plan. Next. So this is like the objectives. We have a long-term perspective plan, and the comprehensive and integrated approach is there. Some set priorities are there in the master plan, and then we also record the short-term action plan which are there. And finally, this helps in contributing to the long-term national master plan, which generally there is no specific as such, but generally when we plan the water resource, so this will help in formulating each and every plan which is being done in our country. Next. So these are, sir, general. So I have already mentioned, sir, 73 master plans. Next. So these what we are in the tendering stage, what are in the preparation stage. One with EU, we are doing the Barak Basin. Next. So these are the river basin. हावड़ा और मणिपुर कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे? सर मणिपुर में सर ड्राफ्ट सर मास्टर प्लान वो लोग जो ऑब्जर्वेशंस था उसको कंप्लीट करके दे हैव सबमिटेड द ड्राफ्ट फाइनल सर. So we will have a meeting of the committee soon, sir, which will be headed by GM, sir. And then Howrah? By 15th of July complete हो जाएगा. मतलब they will submit. They will submit by 15 July. Next. So this is web cost. Next, please. So these are the list. So just I am going ahead. Next. So sir, this is the Dhansiri Basin. So as just to give an idea, so the river Dhansiri flows from Nagaland and it goes into Assam. इसका starting point बताओ पहले. सर starting point है सर वो पेरेन में सर, क्योंकि मेरे पास यहाँ कारसा नहीं है, मतलब वो पेरेन धनसिरी जो रिवर है पेरेन में स्टार्ट होती है, जो मतलब असम और नागालैंड का बॉर्डर, वो एकदम नीचे, वो हाँ नीचे आइए, नीचे नहीं, आपका कारसोल लाने से हो जाएगा नीचे, नहीं आप मैप को स्टेडी रखिए और कारसो को ले आए, हाँ नीचे आइए एकदम को लेफ्ट साइड में नीचे, हाँ वो पॉइंट से सर स्टार्ट, वो पॉइंट. अच्छा. हाँ जो पेरेन डिस्ट्रिक्ट है ना सर, बेसिकली सर वो धनसिरी मतलब असम और जैसे उस साइड असम और मतलब नागालैंड का बॉर्डर है सर. तो ये जो ब्लैक बाउंड्री है जी, ये क्या है? यही कैचमेंट है सर. अच्छा, ये इसका कैचमेंट. हाँ ये उसका और इसमें कैचमेंट है. इतनी सारी ब्रांचिंग ब्लू वाली जो ये है, ये क्या चीज है? There are a lot of sub tributaries or something. अच्छा. मेन नदी सर ये तो इधर जा रहा है. हाँ. ये ऐसे जाकर सर ये पॉइंट जब पहुंचती है सर, ये सर डोयांग आके मिलती है. अच्छा. एक उसका राइट साइड का जब डोयांग आके डोयांग और धनसिरी दोनों में. अच्छा. धनसिरी मोपुर. ओके. सर यहाँ से जो आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं ये पेरेन डिस्ट्रिक्ट होता है सर नागालैंड. हाँ. और यहाँ से अगर हम So it seems to have large number of south tributaries. Yes? Large number of southern tributaries, but there are no northern tributaries, right? हाँ सर, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज भी इसका है सर, Northern मतलब tributaries. छोटे. अच्छा. और लेकिन बाद में ये इधर से नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज कुछ आ रही हैं. हाँ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी सब बाद में आती है, मतलब इसका नामबोर है, नामबोर ट्रिब्यूटरी एक है, फिर एक कालियानी है सर. लेकिन राइट साइड में जो है सर मेन ठीक है, डोयांग सर. ठीक है, समझ गए.
ओके, अब मुझे ये बताओ कि इस रिवर का कितना यील्ड है? इसका सर है 1700 निकाला सर, मैं आ रहा हूँ, आप देखिएगा। 6,700? सर इतना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 6,700 का मतलब हुआ कि 6 more than 6 BCM। तो सर ये एवरेज तो एनुअली है सर 6,700। अच्छा, तो वही इसका मतलब 6.7 BCM हुआ है ना? ओके, so lot of water. And how much is the catchment area? कैचमेंट एरिया टोटल है 10,300 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसमें सर अब ये दोयांग साइड से आ रही है, उसका सर 4,500, मतलब 1/3 सर वो दोयांग का catchment। अच्छा, ये सर रिवर सिस्टम अगर आप देखेंगे, ये वाला सर दोयांग का कैचमेंट है, और ये सर धनसिरी, और ये दोयांग का सर एक बड़ा ट्रिब्यूटरी है सर रेंगमा। रेंगमा या नागालैंड में ऊपर वो लोग बीजापुली बड़ा ट्रिब्यूटरी। ओके, और राइट साइड में सर जो बड़ा ट्रिब्यूटरी है ये है सर कल्याणी। कल्याणी। हाँ, कल्याणी असम का हिसाब से सर दिस इज सर गोलाघाट पोर्शन, और नीचे सर ये हमारा ये नुमालीगढ़ है। अच्छा, नुमालीगढ़, I think there is also a forecast station at Numaligarh. यस, CWC फोकस स्टेशन है ये है सर। हम्म। और भिवानी घाट में WRD का डिस्चार्ज साइट था, अभी सर है कि बंद हो गया, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो WRD का डिस्चार्ज कहाँ पर? नुमालीगढ़ सेम जगह? से। ओके, सो मुझे ये बताओ कि धनसिरी और दोयांग, दो रिवर बता रहे हो आप, जी ये दोनों का कंबाइंड यील्ड है 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 6.7 BCM ना? और इनका अलग अलग कितना होगा? धनसिरी दोयांग का कंट्रीब्यूशन 1/3। 1/3। ओके, ठीक है। और इसके बेसिन की क्या खास बातें हैं, मतलब मोस्टली एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट लैंड है सर। एक तो सर है कि नुमालीगढ़ गोलाघाट में हमारा ऑयल लाइमस्टोन है सर, बोकाजान लाइम सीमेंट फैक्ट्री है सर। फिर सर कोल भी मिलता है सर गोलाघाट, ये सब के लिए सर चाय की इंडस्ट्री है। फिर फूड का सब इंडस्ट्री है, जो नागालैंड पोर्शन में फूड, प्लाईवुड ये सब। 10 लाख की आबादी है, हाँ? 10 लाख सर, 91 का सेंसस का 10 लाख के बाद तो 91 का क्या, किस हिसाब से, मतलब दैट वाज द सेंसस था। नहीं, लेकिन 2011 में भी तो सेंसस हुआ था। हाँ सर, मतलब ये तो अपडेटेड नहीं है सर 91 का सारा जो मैं अच्छा। तो उस टाइम का एस्टिमेट। अच्छा, ठीक है। सो which districts are there in this basin? मैं तो डिस्ट्रिक्ट बता दूं सर, मतलब अगर नागालैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सर, मतलब ये जो धनसिरी यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये पेरेन पेरेन है, साइड में ये सर डिमा हासाव सर। फिर यहाँ से पेरेन से जब जाएंगे सर, यहाँ में सर मापुर, मुकेडीमा और न्यूलैंड आता है इस साइड में, जिसका पानी इसमें आता है। और असम का पोर्शन जो मैंने बोला डिमा हासाना और कार्बी आंगलोंग, और नीचे सर इधर सर गोलाघाट आता है सर। मतलब वेस्ट कार्बी आंगलोंग, हाँ? हाँ सर, कार्बी आंगलोंग वेस्ट ही हो गया सर, कार्बी आंगलोंग है। एक तो कार्बी आंगलोंग है, वो तो ईस्ट में होगा, है ना? सही है। हाँ, ये तो वेस्ट में होगा। कार्बी आंगलोंग ये सर। बाकी सर मैं ये तो असम में ये 3 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ में सर नागालैंड में तो ये पेरेन, दीमापुर, सुमुकदीमा, फिर न्यूलैंड, फिर इस साइड में आएगा कोहिमा। न्यूलैंड बोल रहे हो क्या? न्यूलैंड। फिर सर इस साइड आएगा कोहिमा सर, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ। फिर इस साइड आएगा सर हेड, फिर ये जुनेबो, तो फिर सर ये
मोकोक्चुंग का भी पानी इसमें थोड़ा आता है, लेकिन ये बेसिकली वो ओखा डिस्ट्रिक्ट, ओखा ओखा भी आजकल थोड़ा डिवाइड हो गया, जिससे सिमेनी होता है, जिससे सिमेनी मिलती थी पूरा इसमें, ठीक है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट है। सो मतलब दोयांग, क्या नाम था, दयांग, दोयांग। गया गया हाँ, को तो सर नागालैंड में डाइंग बोलते हैं, ओके वायु है। ओके। सो some districts are in Doyang, some districts are in धनसिरी, धनसिरी। ओके। तो असम के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें? सर मुझे जितना दो ही हैं बस ये? तीन, तीन। महासाव का एक छोटा सा पोर्शन, दीमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट। गोलाघाट। ओके। एंड इकोनॉमी में मेन चीज आप में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर की तो सर फॉरेस्ट का जैसे प्लाईवुड ये सब है, और बाकी सर ऑयल है सर, ऑयल है सर, ठीक है। लाइन। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट द फ्लड सिचुएशन? फ्लड सिचुएशन ऐसा है कि जो बेसिकली सर इसका तो सर ये जो येलो पोर्शन सर दिख रहा है सर, जैसे येलो पोर्शन इज सर जो प्लेन एरिया है, एक येलो लाइन दिख रहा है सर पूरा ये प्लेन पोर्शन, और जो बाकी है सर हिल्स है। तो हिल्स में तो ज्यादा फ्लड का सिचुएशन नहीं है, पर थोड़ा बहुत है, जैसे दीमापुर में अर्बन फ्लडिंग होता है, ये सब चीजें थोड़ा है। ये प्लेन पोर्शन में सर जो मतलब जो हमारा फ्लड प्लेन है, टोटल 2000 जैसे 500 का फ्लड प्लेन मैं आपको ये जो फ्लड प्लेन वगैरह है सर 2500 का, जिसमें से जैसे 300 स्क्वायर किलोमीटर सब फ्लड अफेक्टेड, 300 स्क्वायर किलोमीटर पर फ्लड अफेक्टेड। इसमें से सर हम एम्बैंकमेंट सिस्टम कुछ बनी हुई है, जिससे 50 स्क्वायर किलोमीटर कुछ बेनिफिटेड है, लेकिन एक्टिवली अभी जो सर बन गई है रिसेंटली, उससे कितना और ज्यादा बेनिफिट है वो मेरे पास नहीं है सर, ये तो पुराना रिकॉर्ड है सर। ओके। सो ये जो फ्लडिंग होती है वो एग्रीकल्चरल लैंड की होती है? जी जी, एग्रीकल्चर लैंड। और व्हाट अबाउट इरोजन? सर इरोजन भी बहुत प्रोमिनेंट है सर इतिहास में। तो एक्चुअली क्या होता है सर, जब नागालैंड पोर्शन इज इन द हिल्स, तो हिल से जब प्लेन्स में आता है ना सर, तो थोड़ा सा जो फ्लैटेड हो जाता है, उसके बाद सर रिवर मिएंडर करने लगता है, और उसमें जो एल्यूवियल सॉइल है उसके वो सर काटने में बहुत इजी होता है नदी को, एंड देन असम पोर्शन में बहुत ज्यादा सा इरोजन प्रॉब्लम। So do we have any idea whether WRD or FREMA is active in this area? Yes, sir. मतलब we have collected some data. Sir, like, sir, these are the anti-erosion schemes which were earlier recommended to be taken up in the Master plan. These are the 12 critical sites which were like listed. Out of this, sir, we have collected some data in which we have got the data is 6 critical sites. Okay. Sir, Out of how many? 12. Sir. 12. What is taken after BPR preparation work. हाँ, जो बोका जॉन वाला। इसमें नीचे जो पूरा पार्ट है उसमें कवर हो जाएगा। That means it is in Karbi Anglong only. हाँ सर, 1970 लोकेशन। ये तो वो वाला है सर। तो हाइड्रो पावर का तो सर उस दिन मैंने बताया था। तो ये जो हमने 12 आइडेंटिफाई किए उसमें से 6 हो गए हैं, 6 बच गए, वो 6 उस 19 का पार्ट है क्या? हाँ सर, 19 का उससे ज्यादा ही होगा सर, मतलब उससे ज्यादा होगा, लेकिन सर वो नागालैंड पोर्शन जो है जिसमें थोड़ा क्रिटिकलिटी साइड में वो कवर नहीं होगी। तो इसमें ये एक हाथी गुली लिखा हुआ, ये दिस हाथी गुली इज डिफरेंट ना? दिस इज डिफरेंट द लोकल नेम। ओके। बाकी सर ये है कि स्ट्रक्चरल मेजर में ये कुछ ट्रेडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हमारा उसमें रिकमेंडेड था, जो ऑलरेडी तो ऑलरेडी कर दिया है। ये तो सर हाइड्रो पावर वाला सिनारियो मैंने बोला था, जो पूरा डेटा हमारे पास। ये जो फ्रेमा के वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस एरिया में नहीं है कुछ? नहीं, उसमें नहीं है, वो सर दूसरा रिवर है। ठीक है, थोड़ी लिंक में। ओके।
ये हाइड्रोपावर का सिनारियो एक तो मेनली सर ये दोयांग में सर बन गया जो नेपको का है सर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का? 75 मेगावाट रह गया सर। अच्छा, तो इसमें 4, 3, 7, 8, ठीक है सर इस तरह ओ 8 पर आइडेंटिफाइड। एट द टाइम सर आइडेंटिफाई टोटल कितना पावर? सर दे आर सेइंग कि एट 60% लोड फैक्टर 100 मेगावाट बट उसमें कितना वो है मतलब मास्टर प्लान में लिखा है ये मास्टर प्लान में लिखा है कि एट 60% 100 मेगावाट। 100 megawatt. और अभी जो little sir calculation is little I am not finding it little correct sir ओके because 75 in a single project in Doyan NEPCO has already developed. There may not be a 60% left factor, there may be 25-30%. 75 मेगावाट है उसमें, और बाकी दो ये बाकी सर ये दो मतलब एक्चुअली मुझे ये मालूम नहीं कि whether that is like dam or where or something इसका डिटेल सर कलेक्ट करने पर ओके मतलब एक का तो श्योरिटी है बाकी दो का सर मतलब ये जो डैम है इधर कोई डैम है ऐसा मुझे जानकारी ठीक है। एकदम कम है ठीक। हालांकि उन्होंने दिया है सर और ये दोयान का ऊपर वाला जो है ये बना है कि नहीं ये सर एक बार देखना पड़ेगा सर चिप सर का तो ये आइडिया नहीं होगा ना ये दोयान का ऊपर सर कोई बना है क्या ऊपर में बनी नहीं है जलवारी मतलब प्रपोजल था सर आइदर मे बी इन प्लानिंग स्टेज so they have to nobody is interested nobody is okay. And what about navigation? Is this navigation actually sir from if we see from the confluence sir 20 kilometer area is navigable 20 kilometer space is navigable beyond that it is not navigable and if we want to it has been mentioned 20 kilometer upstream of the mouth? yeah upstream of the mouth Okay. we want to use और ये जो रिवर है तो 20 किलोमीटर दिस इज द कंबाइंड रिवर धनसिरी एंड yes दोयां दैट एंटायर स्ट्रेच इज कंबाइंड। yes और वो जो पावर पॉइंट है वो कितना दूर बना हुआ फ्रॉम द माउथ? दोयांग वाला जो पावर पॉइंट पावर हाउस पावर स्टेशन। अच्छा 100 किलोमीटर ठीक है 100 किलोमीटर ओके। सो दिस 20 किलोमीटर जो नेविगेबल है उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह? नहीं सर कोई जानकारी नहीं ये अच्छा। ये क्या सर मतलब ये So what will be the use of developing a waterway here in this 20 kilometer, if at all? they are saying in this area is from the year it can be used for navigation because matlab just because they have a lot of opportunity for digging the like raw Agriculture. material for like Bokajan area and all which is industrial area. अच्छा अच्छा That is why they are okay. but it cannot at present it cannot be navigable up to Bokajan sir only 20 kilometer they are saying. Okay. And any idea about the irrigation scenario? Irrigation scenario is that not much developed, sir. They have lot of projects, and also, out of 31 square kilometer. This, अच्छा। only 370 square kilometer. 18% is the IPC. Okay. And IPU we don't know. Utilized. Utilized, sir. Only. Okay. Rice is the main crop, huh? Okay. Any horticulture, popular horticulture product there? ठीक है. Okay. Good. Well done. So, anything else? Next slide क्या है? ये बहुत सारे मैंने आपको इधर उधर से दिखा दिया सीरियसली नहीं दिया कि कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी है सर वाटर से एक डिटेल स्टडी किया हुआ है दैट इज 34 ऑफ कैशमेंट डेंसिटी तो असम रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने किया ऑन वाटर से मैनेजमेंट तो इसका स्टेटस हमको जानना पड़ेगा कि नागालैंड या असम में
जो हिल पोर्शन है, क्या क्या वाटर सेगमेंट। अच्छा, ओके, आगे। इज द रेनबो स्टेशन है, रेनबो बेस प्लेटफॉर्म, the change in cropping pattern is a direct. So from our master plan. Yes, So it is old information. All information. Whatever I have given is there in the market. Next. Good. So well done.